this evening. Let me begin by introducing and welcoming all our Minister of India, Sri Dharmendra Pradhan Ji, the Union Sports Minister of India, Sri Anurag Singh Thakur. We also have the Honourable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Sri Nisit Pramani. हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि आज शाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो चैंपियन एथलीट्स जो देश की हमारे तिरंगे की शान है। ये दोनों हर घर के लाडले तो हैं ही और इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि आज शाम इन सभी स्टूडेंट्स के साथ ये जुड़ पाए। The man who gave us a chance to hear our national anthem at the Tokyo Olympics, India's first ever track and field Olympic gold medal winner, Sri Neeraj Chopra. And the first and the only female double Olympic medalist of India, the undisputed queen of the badminton court, the one and only PV Sindhu ji. Last but not least, we also have with us the dynamic CEO of Star Sports, Mr. Sanjog Gupta. Also present with us this evening, the Secretary Youth Affairs, Srimati Usha Sharma, Secretary Sports, Sri Ravi Mittal, Director General, Sports Authority of India, Sri Sandeep Pradhan, Sri L.S. Singh, Joint Secretary Sports, Sri Atul Singh, Joint Secretary Development, Ministry of Youth Affairs and Sports, Mr. Nitesh Kumar Mishra, Joint Secretary, Ministry of Youth Affairs, Ms. Ekta Vishnoi, Mission Director, Fit India, Ms. Ritu Sen, Director, School Education and Literacy, Ministry of Education, and other dignitaries and officials from the Ministry of Youth Affairs and Sports. हमारे लाखों स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो बहुत ही स्पेशल विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय AFS त्रिवेंद्रम, वहां से Bismay Mohan from class 10 and his parents, Mr. Mohan Lal and Mrs. Nisha Govind, और साथ में है Tanishka Chandel from class 8 and her parents, Wing Commander Anil Kumar Chandel and Mrs. Devendra Chandel. Along with them, we also have the august company of the principal of the school, Mr. Kumar Mohan, and the physical education teacher, Mrs. Indu Sharma. So once again, a big welcome to everybody joining us here this evening. Fit India Mission celebrate करता है आजादी का अमृत महोत्सव। अलग अलग तरीकों से हर भारतीय को जुड़ने का मौका मिल रहा है इस पहल के साथ, चाहे अब वो फिट इंडिया फ्रीडम रन हो या कुछ दिन पहले लॉन्च की गई फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन कोई भी मूवमेंट फिट और हिट तब होती है जब उसके साथ जुड़ते हैं देश को भविष्य में ले जाने वाले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि उसके स्टूडेंट्स। और इसी उम्मीद के साथ आज लॉन्च होगी द वेरी फर्स्ट फिट इंडिया क्विज 2021। अब किसी भी आप चैंपियन से अगर आप पूछें, चाहे नीरज हो चाहे पीवी सिंधु हो, कि कैसे और चैंपियंस ढूंढे जाएं, तो अक्सर एक जवाब मिलता है, कैच देम यंग। तो इस फिट इंडिया क्विज के साथ the aim is to create awareness about fitness and sports among the school children. The objective of the quiz is to provide a national platform for students to showcase their knowledge about fitness and sports और साथ साथ जागरूकता लाना हमारे देश के बहुमूल्य खेल इतिहास, हमारे सदियों पुराने स्वदेशी खेलों की, to create an awareness about our national and regional sporting heroes of the past and present who brought laurels to our nation at international events. And also how traditional Indian lifestyle activities hold the key to a fit life for all. अब इंडिया की सबसे बड़ी क्विज के ऑनलाइन प्रिलिमिनरी राउंड्स कंडक्ट करेगी the prestigious National Testing Agency, which is in charge of examinations for premier institutions like the Indian Institute of Technology. The prelims will be in multiple languages, जहां देश का हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल नॉमिनेट कर सकता है दो स्टूडेंट्स को एक मोबाइल बेस्ड टेस्ट। This will be followed by state web rounds in each state and union territory, और सभी states के champions फिर पहुंचेंगे नेशनल लेवल पे, जहां पे इम्तिहान होगा ना सिर्फ नॉलेज का, ना सिर्फ उनके फिटनेस के बारे इंफॉर्मेशन का, लेकिन कई मस्ती भरी एक्टिविटीज के साथ उनकी अपनी फिटनेस का भी इम्तिहान होगा। और इन सब पड़ावों को पार करके हमें मिलेगा हमारी पहली फिट इंडिया क्विज का चैंपियन। The national rounds will be broadcast on television and digital platforms for Star India. And hold your breath. The inaugural Fit India Quiz gives the participating students and schools a chance to win cash prizes of more than 3.25 crores. That's big. And this quiz is going to be a path-breaking start and a step to make all of us aware and join the Fit India movement.
So without taking any more of your time, I will now request the Honorable Minister of State, Shri Nisith Pramanik, to share his thoughts on this wonderful initiative. नमस्कार। आज की इस महती कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उपस्थित हैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उपस्थित रवि मित्तल जी, सुश्री उषा जी, डीजीएसआई संदीप जी और फिट इंडिया मिशन की डायरेक्टर एकता जी, भारत की शान और हमारे ओलंपियंस पीवी सिंधु जी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े सभी अधिकारीगण, शिक्षक और शिक्षार्थी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। फिट इंडिया मिशन की शुरू होने के बाद से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे देश में हर वर्ग की नागरिक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, हमारे शिक्षक से लेके शिक्षार्थी कैसे इसके साथ जोड़े और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसमें शामिल हुआ और फिट इंडिया मिशन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने के लिए मदद किया। हम लोगों ने देखा कि इस मिशन के शुरू होने की बात ही पूरी देश में इसकी जागरूकता को लोगों ने समझा और इस मिशन के साथ शामिल होकर इस मिशन को सफल करने के लिए आगे आया। कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी की सोच से एक वर्ल्ड क्लास ऐप की लॉन्च किया गई, फिट इंडिया ऐप की लॉन्च की गई और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुस्त शरीर में एक सुस्त मन का निवास रहता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी बहुत जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फिट इंडिया क्विज कंपटीशन के आयोजन की जाए और पहली बार इतना बड़ा आकार से सारे विद्यालय को एक साथ जोड़कर इस फिट इंडिया मिशन में फिट इंडिया क्विज कंपटीशन की शुरुआत की जा रही है। मैं सभी विद्यालय से, सभी शिक्षकों से और सभी शिक्षार्थी से मैं ये विनती करना चाहूंगा कि आइए फिट इंडिया की इस मिशन के साथ जुड़िए, इस क्विज कंपटीशन में आप लोग हिस्सा लें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को कैसे फिट इंडिया बनाया जाए, उस सपना को साकार करने के लिए आप लोग उसमें शामिल होइए और फिट इंडिया मिशन को सफल कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महती कार्यक्रम के साथ जुड़ा। विशेष रूप से शिक्षार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इस शब्द के साथ अपनी सबको विराम देना चाहूंगा। आइए सभी मिलके फिट इंडिया की मिशन के साथ जुड़ते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उसको वास्तव में रूपायित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you so much, sir, for your kind words. अब उनकी तरफ रुख करता हूं जो कभी अपनी फिटनेस रूटीन को स्किप नहीं करते, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए बहुत स्किप करते हैं। Our Union Minister of Youth Affairs and Sports, श्री अनुराग ठाकुर जी, जो अभी फिट इंडिया ऐप के लॉन्च इवेंट पे सबको इंस्पायर कर गए। सर, इतनी वेरिएशन स्किपिंग की होती हैं, ये पता भी नहीं था जितनी आपने आसानी से कर दी। और मुझे लगता है कि अगर आपका आगे चलते हुए कोई और कमिटमेंट नहीं होता, you could have gone on and on. That was amazing. It's now one of the most watched videos. And thank you so much for being here. I request you to share your thoughts, maybe some fitness tips, and also launch the Fit India quiz. Thank you, Jatin जी। भारत के शिक्षा मंत्री एवं स्किल मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, खेलों के राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, यहाँ पर उपस्थित खेल सचिव रवि मित्तल जी, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती उषा जी, उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारीगण और वर्चुअल मोड से जुड़े हुए भारत के 2 ऐसे ओलंपियन जिन्होंने भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया है, नीरज चोपड़ा जी, और मैं तो ये भी कहूंगा ऐसी महिला एथलीट जिन्होंने 1 नहीं 2 ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है, पीवी सिंधु जी, ये शटलर हमारी। उपस्थित सभी अधिकारीगण, संजोग जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर फिट इंडिया क्विज को लॉन्च करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय धर्मेंद्र जी का करता हूं। इससे पहले भी खेल मंत्रालय के माध्यम से, फिट इंडिया मिशन के माध्यम से जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाई गई है, चाहे पूर्व में प्रोग्राम किया गया हो या फिट इंडिया स्कूल भी किया गया हो, फिट इंडिया फ्रीडम रन किया गया हो, लाखों की तादाद में देश के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, खेलों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। और आज तो जब ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और 2 बड़े एथलीट्स हमारे साथ ओलंपियन जुड़े हैं, वो अपने आप में लाखों भारतीयों के लिए, करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आप ही प्रेरित करेंगे लोगों को आगे आने के लिए, फिट रहने के लिए। तो जहां एक और, जैसे निशित जी ने कहा, 29 तारीख को ध्यानचंद जी को एक नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन जिस तरह से समर्पण किया गया, फिट इंडिया मूवमेंट का भी हमारा 2 वर्ष पूरे हुए। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए खुशी इस बात की है, ना केवल ऐप को लॉन्च किया गया बल्कि देश भर में बड़ी तादाद में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी लोगों ने किया और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि जहां देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना है, देश में वातावरण भी खेलों का ऐसा बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उसमें भाग ले सके और कहीं ना कहीं जानकारी भी ज्यादा हो। पूर्व में किन खिलाड़ियों ने अच्छा किया, कौन सी हमारी खेल हैं, किन खेलों में किस साल में किसने क्या क्या किया, या फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ तो उस पर क्या क्या प्रावधान है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है और ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेलों पर और फिटनेस पर पहला शायद कोई क्विज प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। इससे जानकारी भी बढ़ेगी, फिटनेस के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा और फिटनेस में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। और इसको और आकर्षित करने के लिए और इसको आकर्षक बनाने के लिए हम लोगों ने जहां एक और स्टार के साथ इस पे टाई अप किया है, वहीं पर हमने निवेदन किया था शिक्षा मंत्री जी को कि आप जब इसको लॉन्च करेंगे तो देश के लाखों स्कूलों से हमारे लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट जब करेंगे
तो ना केवल शारीरिक तौर पर वो फिट होंगे, मानसिक तौर पर भी फिट होंगे। एक और क्विज खेलने वाला उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो लाखों रुपए उसके स्कूल को मिलेंगे, विद्यार्थी को मिलेंगे, और साथ ही साथ उनकी क्षमता का भी और प्रतिभा का भी देश को जानने का अवसर मिल पाएगा। और मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, आज जब माननीय मंत्री जी आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। देश का कोई भी स्कूल किसी भी बोर्ड के, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड के हो, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 30 दिन का समय है और एनटीए राउंड जो है वो 29 तारीख तक होगा, प्रिलिमिनरी राउंड जो है, और स्टेट राउंड जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसका होगा। नेशनल राउंड जैन और फेब 2022 में होगा। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर आप इसमें भाग लेते हैं और अगर आप स्टेट में क्वालिफाई करते हैं आफ्टर एनटीए राउंड, तो स्कूल को 15,000 रुपये मिलेगा और खिलाड़ी को 2,000 रुपये मिलेगा स्टूडेंट को। स्टेट और यूटी के अगर सेकंड रनर अप है तो 50,000 स्कूल को मिलेगा और 5,000 रुपया स्टूडेंट को मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट रनर अप है तो 1 लाख रुपया स्कूल को और 10,000 रुपया स्टूडेंट्स को मिलेंगे। और स्टेट के चैंपियन है तो स्टेट चैंपियन को 2.5 लाख रुपया स्कूल को मिलेगा, तो 25,000 रुपया खिलाड़ी यानी कि स्कूल के स्टूडेंट को मिलेगा। नेशनल लेवल पर अगर आप सेकंड रनर अप रहते हैं और उसमें 10 लाख रुपया आपको मिलता है स्कूल को, तो 1 लाख रुपया विद्यार्थी को मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट रनर अप रहते हैं तो 15 लाख रुपया स्कूल को मिलेगा और 1.5 लाख रुपया स्टूडेंट को मिलेगा। और अगर आप नेशनल चैंपियन बनते हैं तो 25 लाख रुपया नेशनल चैंपियन को मिलेगा स्कूल के लिए और 2.5 लाख रुपया स्टूडेंट को मिलेगा। तो नेशनल चैंपियन होने पे स्कूल को 25 लाख, नेशनल फर्स्ट रनर अप होने पे स्कूल को 15 लाख, नेशनल सेकंड रनर होने पे स्कूल को 10 लाख। तो वहीं पर कैश प्राइज स्टूडेंट को नेशनल चैंपियन होने पे 2.5 लाख, फर्स्ट सेकंड रनर अप होने पे 1 लाख रुपया मिलेगा। कुल मिलाकर 3.25 करोड़ रुपए के कैश प्राइज, 3.25 करोड़ रुपए के कैश प्राइज स्टूडेंट्स को और स्कूल को मिलेंगे। और जो स्कूल को पैसा मिलेगा उसको खेल गतिविधियों पर ही खर्च करना पड़ेगा। ये खेलों को लेकर और फिटनेस को लेकर क्विज भी है और इस क्विज के माध्यम से स्कूल और स्टूडेंट्स को पैसे भी मिलेंगे और जो स्कूल को पैसा मिलेगा उसको वापस खेल गतिविधियों पर ही खर्च किया जाएगा। ये अपने आप में विद्यार्थियों को देश में एक पहचान दिलाएगा। नेशनल टीवी पर विद्यार्थियों को दिखने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स को और स्कूल को नई पहचान मिलेगी। मुझे लगता है जन जागरूक अभियान भी होगा, जनता की भागीदारी भी होगी और इसके माध्यम से फिटनेस का जन आंदोलन भी हम भारत में बना पाएंगे। तो आइए, है दम तो बढ़ाओ कदम। मैं इसलिए कह रहा हूं है दम तो बढ़ाओ कदम, क्योंकि है दम तो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिए। 30 दिन का समय है, भाग लीजिए, चैंपियन बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें भी, क्योंकि अगर देश में खेलों के प्रति रुचि और बढ़ानी है तो जानकारी को भी बढ़ाना होगा। मैं एक बार फिर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो वर्चुअल रूप से जुड़े हैं और जो यहां पर फिजिकली भी आए हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने कहा, शायद इस समय जो लाखों स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मन ही मन कह रहे होंगे दम भी है, कदम भी बढ़ाएंगे और धमाल भी मचाएंगे। और यही हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कहा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे फ्लैग बेयरर्स हैं, ये भविष्य में लेके जाएंगे भारत को और जागरूकता बढ़े फिटनेस के प्रति, हमारे खेलों के प्रति, खेल में जो रहे सितारे हैं उनके बारे में जाने। इससे बेहतर और क्या पहल हो सकती है। लेकिन जैसे आपने शुक्रिया अदा किया सभी स्टूडेंट्स की ओर से, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आज शाम जुड़े हैं हमारे साथ। सर, इस पल अगर आप बता पाए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मुहिम को लेके, और शुरुआत कर दे बस ये फिटनेस का जो अभियान चल रहा है इसके इस नए पड़ाव की ओर, फिट इंडिया क्विज की ओर ले जाइए सर।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की खेल तथा सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, गृह राज्य मंत्री तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय निशित परमाणिक जी, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिव आदरणीय उषा शर्मा जी, स्पोर्ट्स के आदरणीय सचिव रवि वित्तल जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, स्टार स्पोर्ट्स के संजय गुप्ता जी, हम सभी के लिए गौरव लाने वाले, लगातार 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली आदरणीय पीवी सिंधु, और इस बार हम सभी के मन में एक नई उत्साह, नई खुशी, और मैं बचपन से स्पोर्ट्स लवर हूं, इसीलिए बड़े कॉन्शियसली कहता हूं, स्पोर्ट्समैन नहीं कहता हूं। हमारे अनुराग जी के सामने स्पोर्ट्समैन कहना, फिर अभी उनको वो कहेंगे परीक्षा दो, इसलिए मैंने कहा सेफली स्पोर्ट्स लवर हूं। और मैं पहली बार शायद इंडियन एथलीट्स में, शायद पीटी उषा जी के बाद, बीच में शायद अंजू बेबी ने भी कुछ थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन नीरज चोपड़ा जी ने इस बार हम सभी की मान बढ़ाया, देश की मान बढ़ाया। ऐसे 2 हमारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ दिल्ली में जुड़े अनेक प्रमुख साथीगण, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में इसको देखने वाले स्कूल की दुनिया के, स्पोर्ट्स के दुनिया के, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनेक मित्रगण, मैं आप सभी को बधाई देता हूं, भारत सरकार की ओर से बधाई देता हूं। ये फिट इंडिया मूवमेंट की एक प्रकार से दूसरी सालगिरह है, और सालगिरह के अवसर पे 29 को ऐप लॉन्च हुआ, आज 1 को फिट इंडिया क्विज की रजिस्ट्रेशन लॉन्च की जा रही है। किस बैकग्राउंड से 2 ऐतिहासिक क्षण हम लोगों के सामने है। एक, देश की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, और ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक जब चल रहा होगा उस दौरान इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने विशेष निमंत्रण दिया था हमारी ओलंपियंस को। पहली बार देश की 15 अगस्त की अतिथि लाल किले की दीवार पे हमारी ओलंपियंस है। भारत की इस जर्नी में, 75 साल की जर्नी में, हमारी स्पोर्ट्समैन, हमारी खिलाड़ी हमारे लिए गौरव लाए, इसकी सम्मान इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से किया। मैं आज आपके सामने जब हूं, मेरा स्कूल से जुड़े हुए मित्रों से एक अनुरोध रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री को, अनुराग जी को, निशित जी को। उन्होंने जो अपना एक विजनरी स्ट्रैटेजी बनाई है इस खेल को नीचे ले जाने के लिए, उसके माध्यम उन्होंने स्कूल को चुना। देश में 15 लाख स्कूल हैं, राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले स्कूल, भारत सरकार के द्वारा चलने वाले स्कूल, निजी उद्यम से चलने वाले प्राइवेट स्कूल। और अभी मेरे को हमारे मित्तल जी स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी कह रहे थे, इसी क्विज कंपटीशन में क्लास 8 से क्लास 12 के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। यानी लगभग मेरे एक अनुमान है 10 लाख स्कूल, 10 लाख स्कूल के प्रति 25 लाख रुपए के अभी जो अवार्ड अनाउंस किया, कुल मिलाकर 3 करोड़ 25 लाख की अवार्ड, और हाईएस्ट एक स्कूल को 25 लाख अवार्ड, और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी अवार्ड मिलेगा। ये 10 लाख स्कूल उस अवार्ड विनिंग कंपटीशन में
पार्टिसिपेट करें, ये हम सभी की इच्छा है। और उसमें क्यों खेलना चाहिए, क्यों ये क्विज में आना चाहिए? मित्रों, जमाना चला गया कि हमारी पेरेंट्स, हमारी अभिभावक, हमारी टीचर हमारी कान पकड़ते हैं कि खेलते क्यों हो, पढ़ाई कब करोगे। इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, जो अच्छा पढ़ेगा उसको स्कूल में जैसे परीक्षा में नंबर मिलते हैं, अपने खेल के लिए भी उनको नंबर मिलेगा। और शिक्षा विभाग और खेल विभाग, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू आर्किटेक्ट। This year, we'll begin a new chapter, we'll write a new chapter. All the Olympians will be graduate by next 4 year, the earning credits. उन्होंने अपने खेल, अभी फिर पीवी सिंधु जाएगी कहीं खेलने के लिए। पीवी सिंधु आजकल शायद आंध्र गवर्नमेंट में ज्वाइन कर गए। हमारे पहले भारत पेट्रोलियम के अधिकारी थे, उनकी पढ़ाई अगर ग्रेजुएशन हुई होगी, उनकी एमबीए तो पोस्ट एमबीए भी कर सकती है, अभी एमबी थीसिस भी लिख सकते हैं। थीसिस लिखने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, ग्रेजुएट होने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। नीरज चोपड़ा अभी कैंप में जाएंगे दोबारा और प्रैक्टिस करने के लिए। उस कैंप की पार्टिसिपेशन की क्रेडिट पॉइंट्स उनकी इंडिविजुअल डीजी अकाउंट में, डीजी लॉकर में उनकी क्रेडिट पॉइंट को रखा जाएगा। हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन सिस्टम से बनाई है, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पढ़ाई के साथ साथ खेलना, खेल में भी नंबर लाना, क्रेडिट पॉइंट अर्न करना, ये व्यवस्था भारत सरकार बना लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में खेलने वालों को भी पढ़ने की बराबर की एकेडमिक क्रेडिट मिले, इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख हिस्सा है। मित्रों, खेल में भी देश की गौरव बढ़ेगा, खेल भी एक नया विधा होगा, खेल भी हम लोगों के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ अर्निंग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कोरोना की अंदर जब हम खेल के बारे में, विशेष करके फिटनेस के बारे में बात करते हैं, कोरोना में सबकी प्रिस्क्रिप्शन हुई है, सारे डॉक्टर, सारे पैरामेडिक्स, सारे पेशेंट के मन में एक बात आई है, मेरे को फिट रहना है। जिन्होंने अपना डेली एक्सरसाइज, डेली योगा, डेली प्राणायाम, डेली वॉकिंग ठीक रखा, उनको कोरोना ने कम कष्ट दिया। बहुत सा इसका उम्र नहीं रहा है। ये फिटनेस भले ही हम स्कूल से शुरू करें, इस फिटनेस की तो आयु अनंत है। कई लोगों ने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक फिट रहा, इसलिए ज्यादा समय टिके। इसलिए भारत सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, एक आर्किटेक्ट खड़ा कर रही है, जिसमें खेल, फिटनेस न केवल एक एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है, ये प्रमुख सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई में, हमारी रोजगार में, हमारी मान सम्मान में भी बने, इसके लिए सारा व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने वाले हैं, कर दिए हैं। इसलिए आज इस क्विज कंपटीशन उस दिशा में एक छोटी सी कदम है। आइए, मैं पूरी स्कूल की ओर से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार की नीति, राज्य सरकारों की नीति दोनों मिलकर हमें 10 लाख स्कूल तक इसकी रजिस्ट्रेशन करें इस सितंबर महीने में। इस सितंबर महीने में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, फिट इंडिया क्विज को बड़ा बनाए और एक माहौल बनाए देश में, खुद को ठीक रखने के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ एक साहित्य नहीं है, वो एक स्पिरिट है। समाज में पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें फिट रहना पड़ेगा। मैं आज इस इनिशिएटिव को
आज इस प्रोग्राम को शुभेच्छा देता हूं और एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूरा कोऑपरेशन का जिम्मेदारी भी लेता हूं और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर भारत जब कुछ चीज तय करता है तो ग्लोबल मॉडल बनना है। हमें अब कल्पना करिए 10 लाख स्कूल, 1 मिलियन स्कूल, अगर हम हर एक स्कूल में 100 बच्चों को भी ये फिट इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करा दे तो कल्पना करिए पूरा यूरोप भर की जनसंख्या हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बड़ी लक्ष्य को लेकर काम करें, फिट इंडिया क्विज को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपको करोड़ों बच्चे जो जुड़ेंगे इसके साथ, जो अभी देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से वादा है कि इसमें पार्टिसिपेशन की कोई कमी नहीं होगी। इस कदम को जितना बड़ा हम सब चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उससे भी ये बड़ा हो। द फिट इंडिया क्विज इज नाउ लाइव एंड रेडी फॉर पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो, शायद जिनकी उम्र निकल गई, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेकिन खेल प्रेमी है, वो भी एकदम दिलों की तारों को छू लिया। सर, आपने जब कहा कि क्रेडिट मिलेगा, एकेडमिक जैसा ही क्रेडिट मिलेगा अगर आप खेलते भी हैं, और पीवी सिंधु जो हमारे साथ हैं, एक एमबीए वो कर सकती है। जैसे आपने कहा एक एमबीए कर लिया, मास्टर इन बैडमिंटन अचीवमेंट तो उन्होंने कर लिया लेकिन इस क्विज में किस्से कहानियां होंगी, अचीवमेंट्स होंगी हमारे खिलाड़ियों की, इतिहास के कितने हमारे नेशनल और रीजनल स्पोर्टिंग हीरोज जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और चाहता है हर नागरिक। और उन्हीं स्पोर्ट्स क्रेजी इंडियंस में एक और भी शख्स है जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाते हैं, और वो भी अपना साथ दे चुके हैं इस फिट इंडिया क्विज को। इंडिया डू प्लीज। बताओ, क्रॉल, बैकस्ट्रोक एंड बटरफ्लाई किस खेल में? शाबाश, आपने जीता है अगला सवाल, जो आपका दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की फिटनेस को भी टेस्ट करेगा। तो चलिए कराटे में एल्बो ब्लॉक करके दिखाइए। आइए बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों हो फिट तो हर कंपटीशन में होंगे वो हिट। फिट इंडिया क्विज है वो कंपटीशन जहां बच्चे ऊंचा करेंगे अपने स्कूल का नाम और जिता सकते हैं 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम। सवालों और कार्यों का ये अनोखा क्विज होगा इन सब्जेक्ट्स पर। तो डोंट जस्ट फिट इंडिया, फिट इंडिया। आओ रजिस्टर करते हैं फिट इंडिया क्विज करते हैं। हिट भी भाई, ये होगी ना बात की। अब तक जो क्विज होती है सबको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, लेकिन जब बात हो रही है फिटनेस की तो फिर उसमें फिटनेस भी टेस्ट की जाएगी। तो आर स्टूडेंट्स एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? चलो म्यूट एक्चुअली ऑनलाइन जुड़े हुए ना, हमने कहा था कि म्यूट पर रखिएगा, इसलिए आवाज नहीं है, लेकिन अगर आप घरों के आसपास है तो बहुत जोर से आवाज आई होगी। लेकिन याद दिला दें सभी को, स्कूल्स को, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स और स्टूडेंट्स को की रजिस्ट्रेशन अब खुल चुकी है फिट इंडिया क्विज के लिए। तो फिट इंडिया की वेबसाइट पे सीधे पहुंच जाइए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए ना, क्योंकि अगले जो कुछ पल है उसके लिए भी कितने आपने शायद अपने दोस्तों को बताया। देखिए आज हम मिलने वाले हैं अपने सबसे पसंदीदा सबसे बड़े ओलंपियन से। तो शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। काफी बार आपने देखा है, अब तक उनसे बातचीत की गई है, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। तो शुरुआत हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ, जिनकी जैवलिन ने निशाना लगाया सीधा इतिहास पे, और तब से खुशियां रुकी नहीं है, क्योंकि अब हम देखें पैरालंपिक्स में भी हमारे हीरोज मेडल्स की झड़ी लगा चुके हैं। लेकिन नीरज एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल का सपना तो पूरा आपने कर लिया। अगर आवाज साफ आ रही है और आपसे बात हुई भी थी, तो सपना पूरा हो टोक्यो जाके, लेकिन वो सपना पहली बार देखा कब था नीरज? कितने सालों पहले शायद शुरुआत हुई थी? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स को इतना सब कुछ मिल रहा है अपने इंडिया में। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम ना बहुत अच्छा होने वाला स्पोर्ट्स में। और मैं बताना चाहूंगा कि काफी बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो मैं उनकी एज का था जब मैं स्टेडियम में जाना मैंने शुरू किया था। तो सबसे पहले तो सिर्फ फिट होने के लिए गया था मैं। मेरा कोई
मकसद नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है या पर्टिकुलर कोई इस गेम में मुझे पार्टिसिपेट करना है। मैं बस फिटनेस के लिए गया था और फिटनेस हुई तो तभी मैंने एक स्पोर्ट्स चुना कि मुझे लगा कि हाँ मैं गेम कर सकता हूं और मुझे जैवलिन पसंद आया तो मैंने जैवलिन को शुरू किया। तो बिल्कुल उस टाइम पे तो बहुत छोटा सपना देखा था कि मैं भी खेलूंगा स्टेट नेशनल तक, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए ट्रेनिंग करते गए और आज काफी टाइम लगा, काफी लंबा समय था, लेकिन हाँ आज जो एक सपना देखता उसके थोड़े दिन बाद गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में हमको मिला है। मुझे तो बड़ी खूबसूरत कहानी आपने बनाई थी क्योंकि जैवलिन तक नीरज चोपड़ा पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सीधे पहले फिटनेस कर रहे थे, तो फिर शुरुआत हुई जो वहां पे देखा तो फिर आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि फिटनेस के मायने क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन आज ये भी सुन के कितना अच्छा लगा कि आप ही एक सवाल रहता है कि पढ़ाई कीजिए या खेलिए, लेकिन अब उन दोनों के बीच में भी एक ब्रिज आ गया है कि अगर आप खेलते हैं आप उसमें भी अच्छे तो उसके भी आपको क्रेडिट मिलेंगे, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये सुन के एक स्पोर्ट्समैन को शायद कितनी तसल्ली मिली है आज। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब हम स्कूल में होते थे तो सिर्फ जब हम खेलते थे तो हमको यही बोला जाता था कि नहीं चलो क्लास में चलो जाके पढ़ो, तो ऐसा लगता जाके पढ़ो तो ऐसा लगता था कि यार स्पोर्ट्स में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ो। लेकिन आज जो है इतना कुछ बदल रहा है अपने देश में कि स्पोर्ट्स को इतनी तवज्जो दी जा रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जो आप पढ़ाई के साथ साथ अगर 1 घंटा भी दिन में खेल लो तो आप बहुत ही पूरा दिन फ्रेश फील करोगे और बहुत ही एक्टिव रहोगे। और स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता है कि वो हमको लाइफ में हमेशा, क्योंकि अगर हम रोज खेलते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज सिखाता है कि हम कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे तो, क्योंकि वो हार जीत का हमें बैलेंस करना सिखाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी उतना ही जोड़ा जा रहा है जितना जरूरी पढ़ाई है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। नीरज, दिल तो आपने जैवलिन से जीत लिया था, एक ही है, कितनी बार जीतोगे, एकदम दिल से हमेशा बोलते हैं। और आज इतने लाखों बच्चे जो आपको सुन पा रहे हैं, अगर आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब आप थे 12, 13, 14 सालों के नीरज, तो आप क्या मैसेज देंगे? उसी अगर आप संदर्भ में सोचें कि उतने ही छोटे बच्चे हैं, शायद ये भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं फिटनेस के प्रति, खेलों के प्रति, तो क्या मैसेज देंगे आज जब आप इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इतनी उपलब्धियों के बाद? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सभी स्कूल को, स्टूडेंट्स को कि फिट इंडिया क्विज से जुड़े। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी शुरुआत है और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप पढ़ाई जरूरी है बहुत ही, और मैं मानूंगा कि वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पोर्ट्स इतना जरूरी है कि आप मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, वो जरूरी नहीं है कि हाँ कोई मैं एक स्पोर्ट्स बोलूं, वो आप खेल लें और स्टेडियम में जाके आप देखें कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और किस स्पोर्ट्स में आपकी फिटनेस किस स्पोर्ट्स जैसी है, तो आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। इतने स्पोर्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज ये शुरुआत है, ये बहुत ही अच्छे होने वाली है आने वाले टाइम में। और मुझे लग रहा है कि जो अपना अभी जो चल रहा है स्पोर्ट्स में, हमने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा मेडल्स का, और अभी पैरा ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश एक स्पोर्ट्स में एक हाई लेवल की उन्नति कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अपना स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छे वाला होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। एक नया अध्याय जो लिख दिया गया टोक्यो में, जो लिखा जा रहा है अभी पैरालंपिक्स में, अभी रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, इंडिया और फिट बनते रहेंगे। और मैं चाहता हूं हमारी एज शटर पीवी सिंधु की ओर। पीवी, when we were talking about this Fit India quiz and I've had this chat, what were you like as a student in school? When a quiz competition would come up or any other competition, did it always catch your fancy? Were you one of those participants ahead in everything? Yeah, firstly, a very good evening to everyone, to all the dignitaries over there, and my dear parents, principals, and students. Yes, firstly, yes, I've completed my MBA and in studies. I mean, when I used to go to school, so yes, there would be some of the quizzes where I would be really very much interested in, because जब हम start करते हैं तो as Neeraj mentioned, initially it was just for fun. Maybe badminton ऐसे ही start किया था, मैं भी सोची थी let me see where will I go.
and also studies were important, and I continued the same way, equally balanced studies and badminton. So at the same time, मतलब हमको ये क्विज रहता था, और we used to have a couple of competitions where we had to attend and make sure. So every time as a student, I used to think, yes, we want to come first in every quiz. So it would be very interesting, and हम बहुत कुछ सीखते थे. So it is kind of a motivation and encouragement for the students, because ऐसे quizzes रहते तो even the teachers say them that yes, if you win this, you go to the next level. So that's kind of an encouragement that they give us. So I always, as a kid, I always enjoyed doing these, quizzes, or debates, or any such kind of things. अभी भी वो एक्साइटमेंट दिख रही है जब आप बात कर रही हो, जैसे स्टूडेंट्स होती है एकदम इनोसेंस के साथ, वो एक्साइटमेंट वो अभी भी बरकरार। सिंधु, आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं, दे बोथ बी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स, तो जब हम स्पोर्ट्स और फिटनेस की बात करते हैं, वाज देयर ऑलवेज एन एम्फेसिस ऑन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स की बातचीत ऑब्वियसली घर पे फ्रॉम अ वेरी यंग एज? Yes, definitely. Even now and still, I mean, fitness is always very, very important to every athlete, every person. And nowadays, I think everyone is out there thinking about their health, their fitness, their physical fitness, because that has become a very important aspect. And yeah, coming from a sports background, my parents always told me that yes, fitness is very important in any sport, not only in just badminton, but yes, in any sport. And in a way, when we were young, we might not know the importance, but the support or the importance of fitness that the parents tell us, or any coaches or support staff tell us, we need to make sure that we do that fitness every single day, because it's not just that we do for a day and just stop it, or we do it for a couple of months and stop. No, it is a daily progress and daily process that we have to make sure we are physically fit. And yes, I agree that physical fitness is very, very important. And are they also linked? Just those crunch moments, when you think about your crunch moments, court पे जब opponent आपको push कर रहा है, क्या वहाँ पे skill के साथ-साथ एक physical fitness, उसी के साथ-साथ आपकी mental strength, these the attributes that take you across the line? Definitely yes, क्योंकि आजकल in any sport, अगर for example बैडमिंटन खेलते टाइम कभी-कभी मैचेस बहुत लंबा चलते हैं, तो that time physical fitness is very, very important. And sometimes you tend to get tired, and you sometimes can't stand on court for a very long time, and sometimes our matches go till 1 hour or 1.5 hours. So that is when physical fitness is very important. And yes, as you mentioned, mental fitness also is important, because when you are losing and you don't know what to do, that time mental aspect plays a very important role, because at that point of time you have to believe and hope that yes, I am going to come back stronger. So equally physical and mental fitness both are important, because not only on court but also off court, kabhi kabhi hum haarne ke baad you get so upset and depressed, not only in sport but also in studies. When you get upset and depressed, you have to make sure that you work more harder and learn from your mistakes and come back stronger. So that is when you make sure that yes, your mental strength is very important. So yeah. Then what's the message you want to give to all the students who joined in today, encouraging them to participate in the Fit India quiz? Yes, talking about Fit India quiz, I think it's a great idea that the sports authorities and the government has come up with, and I'm very, very thankful, and I'm very delighted to say that yes, they have come up with this, because I'm sure it is an encouragement and support to a lot of youngsters out there. And I think the Fit India quiz is going to give a platform where you compete, like not only like where you compete in district, as how we have started competing in districts initially, and then the state and the national level and international level, where we get opponents with different strategy and training. In the same way, Fit India quiz is going to give a platform where you can compete with teams at the state, national and international levels, and also you can become a champion and also learn a lot from your opponents. So I think it's not just that you just learn
and you just move forward, but you get a lot of experience with that, and with that encouragement and support and the motivation that the government and the sports authorities are giving. I think that is a great thing that we're getting, and I'm sure from the sports authorities, not only the Fit India quiz, but personally I think the support that they've been giving is tremendous. Once again, I would like to thank Sports Minister Sir for doing that, and I think to the people, to the students out there, especially, I think Fit India quiz, I'm sure you guys are, you guys will do well, and please do participate. And I wish and hope every student do this, because it is a really good encouragement that you've been getting, and I'm sure you will go much more further, and I wish them all the very best. Thank you, Sindhu. इससे बड़ी encouragement किसी को कहां से मिलेगी? Can you have a big round of applause for both Neeraj and Sindhu? इंडिया फिट हो ही रहा है, और इंडिया की स्पोर्ट्स में भी फिटनेस कितनी बेहतर हो चुकी है। आप दोनों ने, हमारे बाकी सभी ओलंपियंस ने, एथलीट्स ने टोक्यो में जाके पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर कर दिया। लेकिन जाना मत आप दोनों, अभी एक छोटी सी क्विज तो खेली जाएगी यहाँ पे। छोटा सा ट्रेलर तो हमने भी रिजर्व करके रखा है, लेकिन let me now go across to head of sports, Star and Disney India, Shri Sanjog Gupta. Sanjog, good evening. I'm so lucky कि इतने सारे इनिशिएटिव जो स्टार और डिज्नी इंडिया ने लिए हैं पिछले कुछ सालों में, कि मैं वो देख पाया हूँ एक पर्सनल फ्रंट से कि कितनी मेहनत आपने और आपकी टीम ने की है उनको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। चाहे वो आईपीएल हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, यू टुक इट टू ग्रेटर हाइट्स, कबड्डी जो कि हमारा खेल है उसको दुनिया के सामने एक अलग लेवल पे प्रस्तुत किया। अब जब ये फिट इंडिया क्विज की एक नई मुहिम है, how much excitement is there, and what are the plans to take this to the levels that the biggest broadcaster in India usually does with the events? जतिन, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा श्री निशित प्रमाणिक जी का, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। It is a big initiative and a fantastic initiative that is being launched today, because in some sense this is really like laying the foundation stone for the sports culture in this country to be built. और आपने बात की जो स्टार एंड डिज्नी इंडिया ने काम किया है, लेकिन it's days like these that make us feel very proud to be a part of the sports ecosystem. When our government, when the Ministry of Youth Affairs and Sports along with the Ministry of Education comes together to flag something that can potentially change the entire landscape of sports in the country. And that is why this initiative is extremely important and pivotal. श्री ठाकुर जी से कई साल पहले मेरी एक छोटी सी बात है और उनको मैं याद दिलाऊंगा। उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि इंडिया का स्पोर्ट्स कल्चर उस दिन बदलने लगेगा जब एक बहुत पुरानी कहावत को पूरा उलट दिया जाएगा। वो कहावत है, आपको पता ही है जातिन, कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और जिस दिन, और ये मैं याद दिलाऊंगा ठाकुर जी को, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन लोग और पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल्स ये कहने लगे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, उस दिन जेन्युइनली हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बदल गया होगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है श्री ठाकुर जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया है फिट इंडिया मिशन के साथ और अब ये फिट इंडिया क्विज के साथ। वी आर होली सपोर्टिव। ये जो स्पोर्ट्स कल्चर है ये 3 पिलर्स पे हमें लगता है बनाया जाता है। एक है फैंडम जो और इंस्पिरेशन, जो हमारे ओलंपिक एथलीट्स हैं जो यहाँ पे हैं, सिंधु जी हमारे साथ जो हैं, और उनके साथ नीरज जी जो हैं, उनके द्वारा जो इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को और जो फैंडम बनता है वो एक बड़ा पिलर है स्पोर्ट्स में। साथ साथ जो अवेयरनेस है वो इस फिट इंडिया क्विज से बनाई जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस एक बड़ा पिलर है। और पार्टिसिपेशन जो खेलो इंडिया और जो फिट इंडिया मिशन का एक बड़ा पार्ट है, ये 3 जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो एक स्पोर्ट्स कल्चर इमर्ज करने लगेगा इस देश में। और जो ऑलरेडी इमर्ज कर रहा है, जो दिख रहा है हमें हमारे एथलीट्स के सक्सेस के साथ, आपने बात की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी की, उन्होंने जो इंस्पिरेशन दिया है लाखों करोड़ों बच्चों को टू कंटिन्यू विद देयर परसूट्स इन स्पोर्ट।
सिंधु जी ने जो इंस्पिरेशन दी है 2 ओलंपिक मेडल से ढेर सारे बच्चों को, लड़कियों और लड़कों को, कि वो स्पोर्ट्स को करियर बनाएं और स्पोर्ट्स में टाइम बिताएं। और अब ये जो फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ फिट इंडिया क्विज है, इससे जो अवेयरनेस बनेगी लाखों करोड़ों स्कूल्स के जरिए, वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस कंट्री के स्पोर्ट्स कल्चर को बनाने में। So it is a fantastic initiative. Obviously, putting it on broadcast on across our network. The ambition that we have is that more and more kids participate, more and more kids play sport, discuss sport, and become a part of the sporting ecosystem. And that really will set us towards this golden future that Neeraj ji spoke about, which we are surely headed towards. So, you know, it is our privilege, and we are proud of the fact that we can support such an initiative. Thank you, Sanjog. Thank you so much. ये कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर कभी-कभी टेलीविजन देखते हुए कहते हैं कि इतने कार्यक्रम हमारे लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए अभी तो प्रस्तुत करते थे, अभी आपके लिए कि आइए क्वालिफाई करके आपका इंतजार कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स नेटवर्क भी। लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर जिसकी कामना बहुत सालों से सब कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहल जो उस दिशा में हमें लेके जाएगी। तो जब क्विज की हमने इतनी बात कर ली, तो फिर क्विज हो कैसे ना। जरूर रजिस्ट्रेशंस खुल गई हैं और उसके लिए सबको जाना पड़ेगा फिट इंडिया क्विज की वेबसाइट पे, लेकिन मेरे को कुछ पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ दिख रहे हैं। नीरज है, सिंधु है, हमारे मिनिस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो बच्चों के चेहरों पे आप ये मुस्कान देख रहे हैं, इसके पीछे मुझे कुछ सवाल भी दिख रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, एक लौता मौका है जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्विज मास्टर बनने का। उसके बाद ये क्विज जो है ये आपके लिए की जाएगी, लेकिन एक एक करके आई विल गो टू स्टूडेंट। तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिएगा। आप जानते हैं किन किन से सवाल किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा विस्मय मोहन से, जो कि किया जा रहा है पीवी सिंधु को। विस्मय, आर यू रेडी? Yes, sir. Good evening, honorable ministers, dignitaries, Olympic champions, teachers, and my dear friend. My name is Vismay Mohan of class 10th C, KVFS Akkulam, Trivandrum, Kerala. First of all, I would like to congratulate Sindhu ma'am for becoming the first Indian woman to win back-to-back Olympic medals. Sindhu ma'am, I have a question for you. In recent years, a lot of the youth in India is interested in learning various kinds of martial arts, especially East Asian martial arts like karate. So my question to you, ma'am, is which indigenous sport is known as the mother of martial arts? The options are option A, Kho-Kho, option B, Silambam, option C, Kalaripayattu, and option D, Dhupkhel. I think it's option C, Kalaripayattu. Yes, ma'am, it is. Your answer is correct. It's option C, Kalaripayattu. Thank you. विस्मय ने यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, एक मॉड्यूलेशन होती है जब आप क्विज में सवाल पूछते हैं। बहुत क्विज देखी है इन्होंने, एकदम उसी सलीके से वो थोड़े ड्रामा के साथ वो क्वेश्चन पूछा। वेरी वेल डन विस्मय। I'm hoping that we will be participating in the fit. Sir, I will. Okay, अगला सवाल जा रहा है हमारे गोल्डन बॉय को। ये मौका है तनिष्का चंदेल के पास। Yes, sir. मेरा सवाल ये सर से है। पहले तो हार्टी congratulations to you, sir. Thank you. And yes, sir. जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी गेम जैवलिन थ्रो एक प्राचीन युद्ध कला है, प्राचीन युद्ध कला। और वैसे ही भारत में ऐसे अनेक खेल हैं जो सदियों से खेले जा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ इसी से ही संबंधित है। मल्लखंब जो एक पारंपरिक भारतीय खेल है, वह किस प्रदेश से आया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। That's the correct answer. Neeraj, very well done, Tanishka.
ये इनोसेंस जो है इसको बरकरार रखना, लेकिन जो कंपेटिटिव स्पिरिट है उसको और नॉलेज को लेके आना जब हम आपको फिट इंडिया क्विज पे मिलेंगे। There was just one moment जब नीरज ने बोलना शुरू किया और उनके चेहरे पे there is that fan girl moment। हमने कहा था साथ में सिंधु है, नीरज है, हर घर के लाडले, इन सब की इंस्पिरेशन, and you could see Tanishka just couldn't hold herself back. That was beautiful. God bless you, Tanishka. I'll come back to you in a moment. No, in fact, you're asking the next question as well. Shri Anurag Singh Thakur ji, sir, Minister sir, this question is coming to you now. Tanishka is ready with it. A very good evening, Anurag sir. मेरा अगला सवाल आपसे है, and क्योंकि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, I'm sure आपके लिए बहुत आसान होगा। Sir, फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स के कितने हैं? आप कोई ऑप्शन? तो अन्याय, दोनों खिलाड़ियों को ऑप्शन दे दी। ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों किया है? लेकिन मैंने अभी जतिन जी 2 दिन पहले ही जब फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तब भी मैंने उसमें कहा था कि जो 3 एज ग्रुप्स चुने गए हैं वो 5 से 18 साल का एक है, दूसरा 18 से 65 साल वाला, तीसरा 65 साल से ऊपर वाला है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही हमें जब फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी उस समय, मुझे अभी तक याद है क्योंकि उस समय तो मैं मंत्री नहीं था, लेकिन मुझे उस समय भी लगा कि किसी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है इसको। तो देश के प्रधानमंत्री जी की उस तरह से सोचते हुए विभाग ने इसको आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि शायद मैं ठीक हूं, क्योंकि ऑप्शन आपने मुझे दी नहीं, तो ये 3 ही 5 से 18 साल, 18 से 65 साल और 65 साल से ऊपर वाले। Yes, sir, that's the correct answer. अनुराग सर, तनिष्का भी जानती थी, मैं भी जानता था, इसीलिए हमने जो हमारी फिट इंडिया क्विज में एक फीचर है वो ऑफर भी नहीं किया, लेकिन जब वो क्विज आएगी तब वो फीचर ऑफर किया जाएगा जहां पे स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ फोन अ फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे फोन अ पेरेंट हो सकता है या फोन अ स्कूल टीचर हो पाएगा अगर उनको आंसर्स के लिए हेल्प देनी है। तो ये एक फीचर है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, टीचर से पूछेंगे। पेरेंट्स वर्सेस टीचर, ये नहीं एक अच्छा उस टाइम पे उनके लिए क्विज होगा, किसकी तरफ जाए, किसको फोन लगाया जाए, कि सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा वो फोन लगाने का। तो एक हल्का सा फीचर जो आप देखेंगे जब नेशनल राउंड्स आएंगे, जो कि ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे टेलीविजन पे। अगला सवाल माननीय शिक्षा मंत्री के लिए, धर्मेंद्र जी के लिए। विस्मय मोहन, आप हैं हमारे अगले सवाल के क्विज मास्टर। Good evening, Dharmendra Pradhan sir. Sir, a lot of youth in India is interested in knowing their upper body strength, how to make their upper body stronger, and other questions related to the strength of the upper body. So, sir, my question to you is, according to fitness protocols, if we want to test the upper body strength of a child aged less than 18 years, then which of these exercises can we conduct? Your options are: option A, sprint; option B, push-up; option C, partial curl-up; option D, none of the above. Thank you, Vishmay. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, you have given me options. Thank you for that. In the beginning, I said I am not a sports person, I am a sports lover. With that little bit knowledge of sports and fitness, I think option B is the answer, push-up. That creates the डोले सोले उसी में बनता है। Yes sir, you are right sir, you are absolutely right. Yeah, answer is option B. थैंक यू सर, थैंक यू विस्मय। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं नीरज और सिंधु जी को भी लेके आता एडवाइस के लिए, क्योंकि जैसे विस्मय ने बोला कि मोस्ट ऑफ इंडिया द यूथ इज इंटरेस्टेड टू बिल्ड द अपर बॉडी, क्योंकि वो मसल दिख जाते हैं। नीरज बोलता है कि प्लीज लोअर बॉडी और स्क्वाट्स पे भी उतना ही फोकस करो, सिर्फ अपर बॉडी बना के मत आ जाना। क्विज में आए तो स्क्वाट्स भी हो सकते हैं, ठीक कहा ना नीरज? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन। हमने स्टूडेंट्स को क्विज मास्टर बनाया, लेकिन स्टूडेंट्स की एक हमेशा पसंदीदा टीचर्स होते हैं। मैं फेवरेटिज्म नहीं प्रमोट कर रहा, लेकिन एक अलग अब तक एक कनेक्शन रहता है आपकी फिजिकल एजुकेशन की टीचर के साथ। आप भाग के जाते हैं वो पीरियड्स को अटेंड करने के लिए। तो हमारे साथ मिसेस इंदु शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू फॉर द अमेजिंग जॉब दैट यू डू।
आपका सवाल जो आप पूछ रही हैं श्री निशित प्रमाणिक सर से। Good evening, sir. Halo India University Games is a national level multi-sport event held in India where athletes from universities across the country compete in different sports disciplines. Sir, today my question to you is, when and where is the first edition of Halo India University Games took place? Your options are A, 2017 Delhi, B, 2018 Guwahati, C, 2018 Pune, D, 2020 Bhubaneswar. Yeah, sir, Guwahati was 2019. Just a quick correction. Yes. 2020 Odisha Bhubaneswar. Correct, sir. सबको ऑप्शन मिले, वैसे अनुराग जी को ऑप्शन नहीं दिया था, but everyone passes with flying colors, sir. Can we have a big round of applause for these wonderful students? आपने आज represent किया अपने लाखों की कम्युनिटी। सॉरी सर, अनुराग सर आप कुछ कह रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा, जीतना जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी है, तो पार्टिसिपेट जरूर करें। जीतना बहुत जरूरी नहीं, खेलना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आए, इसके लिए अवेयरनेस हो, सब लोग ट्वीट करें, न्यू मीडिया पे डालें, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की पार्टिसिपेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी डिग्निटरीज का। आज ये कदम जो हमने उठाया है, एक स्पोर्ट्स कल्चर भारत में और ज्यादा सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो और यहां से हम पीछे मुड़ के ना देखें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी डिग्निटरीज का, हमारे ओलंपिक हीरोज का, नीरज, सिंधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पेरेंट्स, टीचर्स, तो सब जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। दिस हैज बीन अ फैंटास्टिक इवनिंग एंड वी जस्ट होप, जो एक रिक्वेस्ट सबने की है, प्लीज कम आउट एंड पार्टिसिपेट इन बिग नंबर्स। ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट से है, ये उनके टीचर से है, ये स्कूल के प्रिंसिपल से है। The registrations are now open. You can get on to the Fit India website today and you have time till the 30th of September. तो वे फिट भी रहेंगे, हिट भी रहेंगे, एक कदम भी उठाएंगे, दम भी है और धमाल भी मचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी का आज शाम इस समारोह में जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा।